Can you see the slide? Green color. Question number 1. Okay. Question number 1. The momentum of the system with respect to center of mass. So I know that momentum of the system is constant when an external force acts on the body is 0. If no external force is acting on the body, momentum of the system is constant. Getting it or not? Now what can be the answer? See, suppose if I tell you external force is 0, that means momentum of the system. Now what is momentum of the system telling you? Momentum of the system can be 0. Because when external force is 0, acceleration of center of mass is also 0. No? And if A comma 0, V comma can be constant or 0. And if velocity of center of mass is 0, that means momentum of center of mass is also 0 or constant. But यहाँ पर question में 0 दिया है, तो we'll mark 0 rather than constant. Constant भी हो सकता है. तो answer is B. वैसे एक बार देखो, external force is 0, momentum of the system is 0. Momentum of the system is constant. ये चीज हमने पढ़ी है. और जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 रहेगा. एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है. वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है या 0 हो सकता है, तो मोमेंटम भी 0 हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है. तो इसका मतलब आंसर इज बी. दिस इज हाउ वी डू इट. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. A is projected from a point at an angle with respect to horizontal. At instant t, if P is the linear momentum and K is the kinetic energy. Does anyone know the formula for kinetic energy and momentum relation? P square by 2m. P square by 2m. So can I say kinetic energy is proportional to P square? What will be the answer? A, B, C, D? D. See now, this is kinetic energy and it is proportional to P square, na? Yes or no? ये होता. Yes, sir. Okay. If I would have made the graph of kinetic energy versus P, so how would it be? It would be? Parabola. It will be a parabola symmetrically about y-axis. बराबर है क्या? Yes. Because it is raised to 1 पे symmetrical होता है. Okay, so this is also fine. Because both very easy questions are there. You just because whatever we have done it in introduction is the same thing. We'll come to question number 8. Listen over here. A steel ball is dropped from a hard surface at a height of 1 meter and rebounds to a height of this much, the maximum height attained after the nth bounce. So we know one thing, we have done this relation also. Then when it comes down from a height h initial, the velocity acquired will become under root 2gh initial. When it bounces back, it will become e times of v, and then it goes down again ev. Then as I told you, it will become e square v, and this goes on and on and on and on. So I know that the formula velocity in the nth collision is
e raised to n times of v initial. This is v initial. Similarly, maximum height reached will become, formula you know is v square by 2g. But if I need h maximum in the nth collision, it will become vn square by 2g. vn ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा e raised to 2n times v initial square by 2g, which is h initial. So h maximum in the nth collision, we know the relation, it is e raised to 2n times of h initial. Yeah. Now, listen to me. Can I say, in the nth collision की बात, can I say height required in the second collision, in the first collision, is e 2 raised to 1 times of h initial. What is the height in the first collision? It is 64 centimeters, that is 0.64. E raised to square h initial is 1 meter. So e का value यहाँ से आपको मिलेगा 0.8. This is coefficient of restitution, how I get. Once you get e, then we need to put it in the nth collision. So h in the nth collision will become e raised to 2n times of h initial. E raised to 2n is 0.8. 2n times of h initial is 1 meter. So 0.8 raised to. Did you all understand? So can't we just instead of n write one in each and every answer and then check if it's equal to 64 centimeters? But you are required in the nth collision, na? Yeah. So Yeah. So sir, if we instead of n we substitute n with 1. see, there are many methods to calculate. That is, it is depending on the individual. This is the conventional method, Okay, which sir. is work with everyone. Understand? Then the student Yeah. can vary accordingly and do it. Okay. Next question. Question number 10. Two identical balls marked 2 and 3 are in contact with one another at rest, horizontal, frictionless table. Are hit head on another identical ball marked 1. Initially with the speed v, as shown on the figure. Assuming that the collision is elastic. क्या होने वाला है? When one ball goes inside, what is going to happen? 1 and 2 will stop, na? And 3 is going to come out with the same speed, na? Because since collision is elastic, momentum is also conserved. And kinetic energy is also conserved. So what will be the answer? Ball 1 and 2 will come to rest and 3 will move with the speed b. Okay? ये चीज है, ये तो पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं. Because momentum should also conserve. And kinetic energy in E का value 1 रहेगा. That means the relative velocity of separation should be relative velocity of approach. Yes, we had done it. Question number 10. Question number 13. If you see, maximum sums will be matching with your introductory type. You'll see a projectile of mass m is fired with a velocity v at point P at an angle of 45 degree. Neglecting air resistance, the magnitude of change in momentum leaving the point P arriving at Q. Very simple it is. तो पहले ही कर चुके हैं हम लोग. पहले का ही है. ये हो जाएगा v cos थीटा. ये एक्चुअली ऐसा है, ये v ऐसा है, ये वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? फिर से हो जाएगा v by root 2. When it arrives over here, it will become v by root 2 and v by root. Getting it? Change in momentum will become p final minus p initial.
P final will become m v by root 2 I cap minus v by root 2 j cap minus of P initial is v by root 2 I cap plus v by root 2 j cap. Then this will cancel only. It will become minus 2 mv by root 2 j cap minus mv by root 2. Oh, sorry, root 2 mv j cap. This will be the answer. Okay. क्या आंसर आया? रूट 2 mv ना. Okay, that is the answer. This we have done it before also. No big deal. Same thing it is. Question number 15 पर आता है. A neutron collides elastically with an atom of mass number A, which is initially at rest. Mass number is A. यहाँ पर missing है. So there's a neutron of mass m coming with the speed u, collides elastically with an atom of mass number A. तो उसका mass हो जाएगा m into A. And he's at rest. Rest मतलब 0 पर है. Okay. And after collision, can I say he moves with v1 and this guy will move with v2. Okay. The fraction kinetic energy retained by the neutron. Okay. So fraction of kinetic energy retained by the neutron. वो बाद में देखते हैं. पहले v1 का वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग. v1. Do you know the formula for v1? Yes sir. m1 minus m2 upon m1 plus m2 into u1. Only the first term will come because second term is 0. तो m1 minus m2 क्या हो जाएगा? m minus ma upon m plus ma. u1 is u. m cancel. तो ये हो जाएगा 1 minus a upon 1 plus a into u. ये v1 मिल गया. v1 ही चाहिए. v1 के बारे में ही बात कर रहा है. The fraction of kinetic energy retained by the neutron. Fractional kinetic energy of neutron. What is the final kinetic energy of neutron? Half m v1 square. और initial kinetic energy कितना था उसका? Half m u square. So this is the fraction ना. Final upon initial. Fraction change नहीं पूछा है. Fraction पूछा है सर. half m v1 square upon u1 square. तो v1 upon u1 यहाँ से मिल जाएगा. become 1 minus a upon 1 plus a whole square. 1 minus a upon 1 plus a and square है तो उल्टा भी कर सकते हैं. a minus 1 upon a plus 1 square. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. It will be this way. Square है वो. It is not 2. This is square. I hope you all have understood. Simple है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. Question number 18. This is also simple only. Question number 18 पर आता है. Look over here. What is it telling you? 3 identical spheres of mass 1 kg are placed touching one another. So there are 3 spheres. The centers are marked at P, Q and R. The distance of center of mass from P. तो एक काम करता है इसको origin पकड़ते हैं. इसके coordinates क्या हो जाएंगे? PQ, 0. This is the axis. And इस point के coordinates क्या हो जाएंगे? PR. PR, 0.
Now we know x कॉम सेंटर ऑफ मास इज m1 x1, तीनों का मास 1 है, तो m1 x1 x1 is 0, m2 x2 x2 is pq plus m3 x3 upon m1 plus m2 plus m3, that is 3. X comma is going to become pq plus pr divided by 3. Yes, finished. Yes. Very simple question again. As I told you, question number 19 पर आता है 19. See, what is it telling you? A man of mass small m is standing on a platform of equal mass small m. He is standing. The man starts moving with the speed u relative to the plank. He starts moving this way, the speed u. But this is the relative speed of the man with respect to plank. But याद रखना, जब भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं, we have to do with respect to ground, not with respect to plank. हमको एक चीज मालूम है, see, I'll draw it again. This is the plank, this is the ground. If the man starts walking this way, he starts walking this way. Obviously, what will happen? Where will friction act on the person? When you Right. walk, friction will act this way. This is the friction. Similarly, where will friction act on the plank? पीछे. And due to this frictional force on the plank is going to move with what speed? Na? Some speed, na? In the backward direction. Can I say let it acquire velocity of the plank, ले लो v? Yes or no? Hello? So can I say he is also acquiring some speed? But इसका relative speed दिया है. कितना दिया relative speed with respect to plank? U दिया. But याद रखना, all operations are done with respect to ground. Can I say what will be velocity of the man? Is velocity of the man with respect to plank plus velocity of plank. Am I writing sahi? Yes, sir. So velocity Yes, of the man, velocity of the plank with respect to man with respect to plank is u दिया हुआ है plus velocity of the plank. But plank का velocity मैंने कितना पकड़ा है v, but उल्टे डायरेक्शन में, तो ये माइनस v लिखेंगे. हेलो 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 बोलो, सही है ना? माइनस कहाँ से आया, Yes, समझ आया? तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द पर्सन जो है वो ये नहीं है. एब्सोल्यूट इज u minus v. This is v of man. ओके, ये याद रखना सबसे पहले. ओके, कैन आई से इनिशियल मोमेंटम ऑफ द प्लैंक एंड द सिस्टम वाज 0 बिकॉज दोनों रुके हुए थे. फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा बुलेट एंड गन का? m1 v1 फॉरवर्ड इज m2 v2 बैकवर्ड ना. हेलो, वही करता है ना हम लोग. m u माइनस v आगे जा रहा है, माइनस m v पीछे जा रहा है. ये सिस्टम का मोमेंटम है फाइनली. But I know that initial momentum of the system is equal to final momentum of the zero will become equal to m u minus v minus mv. ये भी मिल गया. m और m कैंसिल हो गया, तो u minus v is equal to v. So v is going to become u by 2 na. yes, sir. And what does v stand for? Planck का velocity ना. That is u by 2. पर आपको स्पीड ऑफ द मैन पूछा है रिलेटिव टू द ग्राउंड. प्लैंक का वेलोसिटी नहीं पूछा है, तो आपको ये पूछा है वेलोसिटी ऑफ द मैन पूछा है. व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द मैन? u minus v. u minus v, v is u by 2. That is u by 2. Hello? Yes or no? Hello? Yes, sir.
ओके, मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। ये सब समझ गया, कन्वेंशनल मेथड समझ गया बेटा? हेलो, Yes, sir. ये कन्वेंशनल मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कुछ भूल जाते हो तो। अभी ट्रिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। ट्रिक देखो, ये प्लैंक है, ये पर्सन है, कैसे जा रहा है, इसका रिलेटिव स्पीड वी आर है, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक। बराबर? हेलो, समझा ना? ये तो मेथड तो समझा ना? अब मैं ट्रिक की बात करता हूँ। ट्रिक क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक विल बी mass of the other one. Who is the mass of the other one? Mass of the man into relative speed of the man upon total mass. हेलो, हेलो, क्या कह रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है क्या? हेलो, वेलोसिटी ऑफ द, डाल के देखो वैल्यू। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक? मास ऑफ द मैन कितना है भाई? मास ऑफ द मैन कितना था? m था ना। वेलोसिटी ऑफ द, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मैन कितना है? ये मैन ही है ना, दोनों ऊपर मैन आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब प्लैंक होगा यहाँ पे दूसरा वाला आएगा। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मैन? u अपॉन m प्लस m, 2m। तो देखो u/2 आया कि नहीं है? अरे मैच कर रहा है कि नहीं? देखो ना। हेलो, हेलो, ये ट्रिक आप याद रखना। प्लैंक रहेगा तो मैन आएगा, मैन रहेगा तो प्लैंक आएगा, मगर प्लैंक तो मालूम ही नहीं है ना आपको। हेलो, हेलो, कुछ रिस्पॉन्ड करो, यस और नो। क्लियर है? तो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द शॉर्टकट बेटा? हेलो, 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 यस। वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक विल बी मास ऑफ द मैन into relative velocity of the man only upon total mass of the whole system. हेलो, यस और नो? Yes, sir. याद रखो। वैसे ही और एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं आपको, और एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। सपोज एक इंसान ओके पानी में है और बोट में है। यहां पर ये स्टैंडिंग, बराबर है क्या? अच्छा, इफ ही वॉक्स टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द राइट, द मैन वॉक्स टुवर्ड्स द राइट, द बोट विल मूव, To the left. जाएगा ना? सपोज ये लेंथ ऑफ द बोट है, आपको मालूम है ना, इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे एक्ट करेगा, इसके ऊपर पीछे फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तो उसके वजह से हाउ मच इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम? 0. थोड़ा कॉन्सेप्ट में बात करेंगे ना बेटा, तो शॉर्टकट एकदम आसान हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स 0 है, दैट मींस व्हाट इज कंजर्व्ड? मोमेंटम इज कंजर्व्ड। हेलो, Yes, yes sir. or no? What about acceleration of center of mass? 0 ना? That means velocity of center of mass is either, हेलो, हेलो, ये समझा आप लोग को? इनिशियली सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 था, तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास उधर ही जगह पर रहेगा ना? हेलो, हेलो, यस और नो? Yes, sir. इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होगा, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, आगे अगर सम आएगा बहुत अच्छा रहेगा। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0? सपोज इनिशियली सेंटर ऑफ मास इधर था सिस्टम का, तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास का होना चाहिए सिस्टम का, इधर ही होना चाहिए ना, तो सेंटर ऑफ मास चलेगा थोड़ी। हेलो, इसका मतलब क्या हो रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब बोट जो है अपनी जगह से खिसक के, बोट का इनिशियल पोजीशन ये था, ये एंड, बोट अभी खिसक के सपोज इधर आ गया।
जब ये इंसान इधर आया तो बोट खसक के इधर आ गया. कैन आई से दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट? अरे भाई बोलो, Yes, sir. क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर है? देखो सेंटर ऑफ मास तो इधर ही था ना पहले. यस और नो? Yes, sir. ये चीज है. कभी कभी आपको पूछता है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट. अभी सेम कॉन्सेप्ट जो पीछे लगाया ना वही लगाने का, वही शॉर्टकट लगाने का. कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट का शॉर्टकट फॉर्मूला? बोट का क्या रहेगा भाई? मास ऑफ द Mass of the man man. into displacement of the man upon total mass. Can anyone tell me what is the displacement of the man with respect to boat? ये relative रहेगा. L. L. L ही रहेगा. L. हाँ देखो शॉर्टकट के जरिए बहुत आसान हो जाएगा, वरना वो सब पूरा स्टेप सब कन्वेंशन से करना पड़ेगा आपको. तो अगर मैं देखूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट कितना हो गया बेटा? मास ऑफ द मैन, सपोज दोनों का मास सेम था तो ये m है या m मैन ही लिखते हैं. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट इज m ऑन मास ऑफ मैन प्लस मास ऑफ बोट. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. सीधा देखकर आंसर आएगा rather than solving anything. I hope I will explain the concept over here. Hello. Yes, sir. सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रहेगा तो बोट को उधर खसकना ही पड़ेगा because it has to obey the law of conservation of linear momentum provided no external forces acting on the system. So I hope this is clear. Now we can go a little faster again. We'll come to क्वेश्चन नंबर 22 पर आता है. A 2 kg block of wood rests on a long tabletop. A 5-gram bullet moves horizontally with a speed of 150, is shot into the block and sticks to it. The block then slides 2.7 meter along the tabletop and comes to stop. The force of friction. एकदम आसान समय है, actually kinematics का ही समय है. ये एक टेबल टॉप है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है. एक 5 ग्राम का बुलेट आया, कितने स्पीड से? 150 मीटर पर सेकेंड से. शॉट इनटू द ब्लॉक एंड स्टिक्स टू इट, मतलब अंदर आके रुक गया. द ब्लॉक देन स्लाइड्स 2.7 meter and comes to rest with the bullet inside. बुलेट अंदर ही है. कह रहा है जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा ना, ये जो फ्रिक्शन है इसका वैल्यू कितना है. ठीक है, पहले क्या करेंगे कोई बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी? पहले इस कोलिजन को देखना है. हेलो 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 हेलो. कैन आई से इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम कितना है? 5 ग्राम. 5 ग्राम दैट इज 5 into 10⁻³ into 150. एंड पीछे क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम कितना है? दोनों का मास कितना हो गया? 2 + 5 into 10⁻³ अपॉन v कॉमन. यस और नो? हेलो 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 हेलो. यस और नो? Yes, sir. v कॉमन का वैल्यू आपको आएगा 0.37 मीटर पर सेकेंड. आई एम जस्ट गिविंग इट टू यू डायरेक्टली. फिर कहना है ये v कॉमन से चल रहा है, ये जो बुलेट है अंदर एम्बेडेड हुए है v कॉमन से चल रहा है. Now can anyone tell me in the second case what is the stopping distance? हेलो 2.7 ना. एंड फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? V square equal to U square plus 2AS. v square is equal to u square plus 2as. या can I use initial kinetic energy plus work done by friction final kinetic energy? ये भी चलेगा. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? हाफ m plus m v square.
into VC square. VC is 0.37 का square. Minus work done by friction is force into displacement. And final kinetic energy 0 हो गया तो सीधा force मिलेगा ना यहाँ से. Hello. Hello. Yes or no? 0.05. I hope you all are understanding. ये मेथड है. दूसरा मेथड भी है आपके पास. स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? U square by Square by 2G. 2a. But acceleration is mu g ना. Hello. Yes or no? Acceleration on the block is mu g. पता है ना यार. तो यहाँ से mu ढूंढ लो. mu एक बार मिल गया तो फ्रिक्शन क्या रहेगा? mu m plus mg. Are you understanding? अरे भाई, getting it? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. दोनों में से कोई भी जो आता है आपको, that you can do and you will get the resultant answer. I hope you all are understanding. Hello. Same sums are repeated again and again. Question number 24 पर आता है. Actually, I want to do 50 तक आज कंप्लीट करेंगे, so that next time आराम से हमारा खत्म हो जाएगा. सम्स एकदम इजी है. चलो बेटा, एरिया अंडर द ग्राफ क्या देगा? एफटी कर्व है. एरिया अंडर द कर्व क्या देगा आपको? Because Change in Pulse. momentum. इम्पल्स देगा ना. चेंज इन मोमेंटम देगा. ओके, इम्पल्स which is change in momentum is area is half base into height. Base is t naught into height is f naught. ये तो मिल गया, ये तो देखने से ही मिल गया. क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है अब तक मैंने. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग एट द वेलोसिटी v u makes an elastic one dimensional collision with a stationary particle. क्या होने वाला है? क्या होने क्या वाला है? m u से जा रहा था, सेम पार्टिकल से रेस्ट पर था, तो क्या होगा? कोई बता सकता है? Exchange space. ये रेस्ट पर आ जाएगा और ये चल जाएगा. ये चलेगा आगे u से. So can anyone tell me what happens to the momentum of the first particle? पहले चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहेगा? फाइनल माइनस इनिशियल ना. हेलो, यस और नो? Yes, sir. या सेकंड पार्टिकल के बारे में क्या बोलते हो? सेकंड पार्टिकल पे इंपल्स ऐसे लगा ना टकराने के समय पर. देखो, एक इसके ऊपर इंपल्स पॉजिटिव में लगा, इसके ऊपर सेम इंपल्स लगा नेगेटिव में. अच्छा, एक काम करो, ये सब छोड़ो. ये फॉर्मूला माने मैं आपको, मैंने सिखा चुका हूँ. इनिशियल मोमेंटम प्लस माइनस इंपल्स इज फाइनल मोमेंटम. हेलो, सुना है क्या इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन? हेलो, यस Yes, और नो? sir. मैं अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए बेटा. वी कैन डू बाय जनरल मेथड आल्सो. इनिशियल मोमेंटम, आई एम कंसीडरिंग द सेकंड पार्टिकल. कोई भी पार्टिकल आप पकड़ सकते हो, आंसर वही आएगा. मैं सेकंड पार्टिकल पकड़. अच्छा, दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर अ सिंगल पार्टिकल. सिस्टम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, तो सिस्टम का मोमेंटम तो कंजर्व्ड है ना. इनिशियल मोमेंटम 0 था, प्लस जे लगा है इसके ऊपर. जे लगा मतलब ये लगा, तो क्या लगा? हाफ टी नॉट एफ नॉट लगा, या जे लिखता हूँ. फाइनल मोमेंटम इसका हो गया एम यू. देखो, एम यू. तो जे का वैल्यू कितना है? हाफ टी नॉट एफ नॉट इज इक्वल टू एम यू. तो क्या मांगता है आपको? एफ नॉट चाहिए. एफ नॉट विल बिकम 2 एम यू टी नॉट. हेलो, हाँ ना बोलो, यस और नो? Yes, sir. ठीक है ना, ये तो क्लियर है. तो एक्चुअली दीज आर ऑल वन लाइनर्स. दीज आर ऑल वन लाइनर्स. मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या था? कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये था, कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये था. बस इसके आगे आपको बेसिक मैथमेटिक्स करना है और कुछ नहीं. नंबर्स रहेगा तो नंबर्स पुट करो. ट्रिगो रहेगा, ट्रिगो अप्लाई करो. डेरिवेटिव रहेगा, डेरिवेटिव रहेगा. इंटीग्रेशन रहेगा, इंटीग्रेशन करो. तो फिजिक्स का सिर्फ स्टार्ट में स्टेप होता है बेटा. 3 स्टेप्स होते हैं जनरली, इफ आई टेल यू. फर्स्ट इज एनालिसिस ऑफ द डेटा. डेटा इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं इसको. ओके, ये स्टेप 2, फिजिक्स लगाना है आपको. फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट. एंड थर्ड स्टेप जो रहेगा वो मैथ आता है.
कोई भी सम को सॉल्व करना, चाहे एडवांस हो, सिंपल सीईटी हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें यही 3 स्टेप्स एप्लीकेबल रहेंगे। अभी आपको देखना है आप किधर कमजोर हो। आपका फिजिक्स कमजोर नहीं रहेगा, फिजिक्स इज ओनली वन पार्ट। या तो आप रीडिंग में कमजोर हो, मेरे से भी गलती होती है कभी कभी रीडिंग में, ओके, सो दैट वी नीड टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। फिजिक्स आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, एंड मैथ इज द टर्शरी पार्ट आउट ऑफ दैट थिंग। हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग ना व्हाट्स हैपनिंग? Yes, sir. ये चीज पे अगर आप ध्यान देंगे ना तो फिर आपको आ जाएगा। ये वही सब है, सेम चीज। चलो 25th वाला भी कर लेते हैं। Two identical blocks A and B of mass m are joined together by a massless spring as shown in the figure, are placed on a smooth surface. If a block A moves with an acceleration a naught, so block A is moving with an acceleration a naught दिया हुआ है, then the acceleration of block B. Can anyone tell me what is A com का formula? Net external force upon total mass ना। एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, अपॉन टोटल मास क्या रहेगा 2m, बराबर है क्या? हेलो, Yes, sir. ए कॉम का दूसरा फॉर्मूला याद है आपको, सबको याद होना चाहिए, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। अब मिल गया आंसर। ए कॉम क्या, f/2m मैंने ढूंढा, m1 इज m, a1 इज a नॉट, m ab अपॉन 2m। तो यहां से ये 2 भी उड़ गया, f/2 f/m माइनस a नॉट विल बी ab। अरे भाई करेक्ट है क्या? हेलो, ये है ना? Yes, sir. ये सब चीजें हम लोग इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं, ओके, तो कोई नया सम नहीं है, थोड़े सब्जेक्टिव में अच्छे क्वेश्चंस है, दैट वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम। Sir, is this a C-frame question? नो, इट इज नॉट अ सी फ्रेम क्वेश्चन, इट इज नॉट अ सी फ्रेम क्वेश्चन, इट इज जनरल क्वेश्चन। सी फ्रेम क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी पूछेगा। हेलो, Okay, sir. दे विल आस्क यू कितना खिसक गया वो ये फोर्स लगाने पे। तो हम लोग क्या करते हैं, कितना खिसक गया वो, तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे पकड़ लेते हैं, इसको ऐसे पकड़ बना लेते हैं सेंटर ऑफ मास पे। ये खिसकेगा सपोज x1, ये खिसका xb, और ये कितना खिसका xa। XA. फिर हम लोग करते हैं, जब भी डिस्प्लेसमेंट पूछेगा ना बेटा, वो सी फ्रेम वाला क्वेश्चन होगा। You getting it what's happening? जहां पर Yes, आप sir. सेंटर ऑफ मास को क्या पकड़ लेते हो, रेस्ट पर Rest. पकड़ लेते हो, तो इसको बोलते हैं सी फ्रेम क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन टिपिकल है, जनरली एडवांस में ही पूछा जाता है ये, ओके। आपके लिए एक बुक, बहुत अच्छा बुक बन रहा है, एनटीए का जो वेबसाइट है उससे जितने भी क्वेश्चंस है, आई हैव एक्सट्रैक्टेड ऑल द क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं। सो दैट बुक आई विल बी मेकिंग एंड आई विल बी गिविंग इट टू यू इन दिस वीक ओनली। आप लोग को चाहिए तो कलेक्ट कर लेना, आई विल प्रोवाइडिंग द पीडीएफ फॉर्मेट आल्सो। तो एक बार डीसी पांडे खत्म होता है, लास्ट ईयर के पेपर्स खत्म होते हैं, देन 10 12 क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर आर देयर, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सो दैट ओके यू ऑल कैन प्रैक्टिस। आई विल इन्फॉर्म, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं, we again and again we are doing 30th क्वेश्चन पर आते हैं। 30th क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, सब हम लोग 30th क्वेश्चन याद है ना, कैविटी वाला सम, मगर एक ही कैविटी थी उधर। हेलो, यहाँ पर दो कैविटीज है, याद है मैंने सम किया था। हेलो, Yes, sir. अब हम लोग एक काम करते हैं, जब दो कैविटीज रहेगी ना तो वो चलेगा नहीं। एक कैविटी का शॉर्टकट क्या था, याद है आपको? जब एक कैविटी होती, M1R1 is equal to M2R2. when there is one cavity, the shortcut was, if it is a 2D body, then you would write it as a1 x1 is equal to a2 x2, where this was remaining and this was removed, याद है ना? हेलो, Yes, sir. ये 2D बॉडी होता, 3D बॉडी होता तो मैं वॉल्यूम के बारे में बात करता, बट यहाँ पर दो कैविटीज है तो हमारा मेथड ये काम नहीं करेगा। हेलो, गेटिंग है ना?
ये मेथड काम नहीं करेगा। अभी ट्रीटमेंट होगा कन्वेंशनल मेथड से। कन्वेंशनल मेथड क्या बोल रहा है कि क्या मैं इसको पूरा एक मास पकड़ सकता हूं? पहले को बता सकता है इसका सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा? हेलो, इसका सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा? Origin. इधर ओरिजिन पर रहेगा। इसको 0,0 पकड़ता हूं, चलेगा ना? और उसमें से मैंने इतना काटा, ये काट दिया। इसका सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा? हेलो, वाई एक्सिस पे इसका सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा? अरे यार आता है यार, आपको इतना बोलो ना, इसका सेंटर ऑफ मास 7r/2. ये तो मेरे को मालूम है ना, ये 4r है देखो, उसमें से ये r है तो ये 2r हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा सेंटर ऑफ मास? 3r. 3r हो जाएगा ना। तो इट इज 0,3r, यस और नो? हेलो, आर यू ऑल गेटिंग इट और नॉट? 3r हो गया ना। और ये हॉरिजॉन्टल वाले का क्या हुआ? इसका क्या हुआ? इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? 3r, 0. सब लोग अंडरस्टैंड? हेलो 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 हेलो, यस और नो? अब ये 3 बॉडीज पकड़ो इसको। कैन आई कॉल दिस एज A1? कैन आई कॉल दिस एज A2? कैन आई कॉल दिस एज A3? या कैन आई कॉल दिस एज M1? कैन आई कॉल दिस एज M2? वही चीज रहेगा, एरिया है बिकॉज 2D बॉडी है। अगर 3D बॉडी होता तो वॉल्यूम लिखता। अच्छा, कैन आई से R कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास will be M1 R1 bar plus M2 R2 bar plus M3 R3 bar upon total mass। लो, तो ये R कॉम बार हो गया। M1 की जगह A1 लिख सकता हूं मैं। हेलो हेलो, बिकॉज आई नीड ऑफ द रिमेनिंग। अब मेरी बात सुनो, R1 बार, R1 बार सही है। अच्छा, ये मास दूसरा वाला मास ऐड किया है कि माइनस किया है? दूसरा वाला Minus. मास जो माइनस किया, तो यहाँ पे माइनस लिखने का। हेलो हेलो हेलो, एकदम इजी है बेटा ये। अपॉन मास भी माइनस हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अगर ये अच्छा. 3D होता तो मैं वॉल्यूम लिख लेता, क्या बड़ी बात है उसमें। अब चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज एरिया ऑफ वन? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ द फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट मैंने क्या पकड़ा है जरा देखो, तो एरिया क्या रहेगा उसका? अरे यार, इसका एरिया क्या रहेगा? 16 pi r². ये 4r है ना, तो पाई आर स्क्वायर विल बिकम 16 पाई आर स्क्वायर, सही है। बट इसका इसका आर कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0 है, मतलब 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। हेलो बोलो, माइनस, इसको रब कर देता हूँ, माइनस क्या रहेगा? दूसरा वाला क्या है? एरिया क्या है? pi r². पाई आर स्क्वायर है। एंड इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? 0 आई प्लस 3r जे। हेलो 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 हेलो, यस और नो? ऐसा. माइनस तीसरा वाला क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर 3r आई कैप प्लस 0 जे कैप अपॉन A1 माइनस A2 माइनस A3, तो 16 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। हेलो हेलो हेलो, सिंपल मेथड है। हेलो, यस और नो भाई बोलो। ऐसा. अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट 3r/14, 3r/14, नन ऑफ दीज आंसर आएगा। यू विल गेट r कॉम एज 3r/14 आई कैप माइनस 3r/14 जे कैप। और ये पूछ चुका है, तो 2 कैविटी रहेगी। और अगर 3D बॉडी होगा तो वॉल्यूम ले लेना है, तो नन ऑफ दीज में आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है ना। हेलो, मेथड समझा क्या? मेथड समझा, यस और नो? तो इधर ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, इधर जनरल कन्वेंशनल मेथड से ही काम करना पड़ेगा। देखो, अगर आपको बेसिक कन्वेंशनल मेथड्स भी आ रहे हैं, कोई ट्रिक नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेसिक मेथड से करो, आपको आंसर आ जाएगा। ओके, थोड़ा स्पीड में फर्क पड़ेगा, बट कॉन्सेंट्रेट ऑन कन्वेंशनल मेथड,
ट्रिक अपने आप आपको आ जाएगी एक बार आपको कन्वेंशन आता है. डोंट गो फॉर ट्रिक्स ऑलवेज. इफ यू फॉरगेट द ट्रिक देन द सम इज ओनली गॉन. बट कन्वेंशन को प्रैक्टिस करके रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. Third question. What is given? A loaded spring gun of mass bada M fires a bullet of mass M with a velocity v at an angle of elevation theta. The gun is initially at rest on a horizontal smooth surface. After firing, the center of mass of the gun and the bullet system क्या होने वाला है? कौन बताएगा? How much is the net force between them? अरे भाई बुलेट एंड गन है. 0. बुलेट एंड गन है. सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से मूव नहीं होने वाला है. बराबर है क्या? हेलो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ क्या होगा. सपोज ये कोई गन थी ऐसे गन है. एंड इनिशियली बुलेट अंदर है तो सेंटर ऑफ मास सपोज सिस्टम का इधर है. हेलो यस और नो. दिस इनिशियल ये बुलेट अंदर ही है. बुलेट गन के अंदर है सपोज. एम्बेड है क्या. अब मुझे मालूम है कि सेंटर ऑफ मास इंटरनल फोर्स है तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे ही रहेगा. सेंटर ऑफ मास इधर से मूव होने वाला नहीं है. तो अगर बुलेट आगे जा रहा है ना तो गन पीछे जाएगा. नहीं जाएगा. नहीं जाएगा. यस और नो. अरे भाई टेल मी. Yes, sir. तो वी हैव डन ओनली ना पहले भी. ओके तो ये जो चीज है ये गन इधर से इधर तक खिसक गया ना. कैन आई से दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गन. यस और नो. एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हाट सर. अरे यार क्या हो रहा है यहाँ पर. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बुलेट. यस और नो. Yes, sir. अच्छा इंटरनल फोर्स कितना है सिस्टम का. एक्सटर्नल फोर्स कितना है सिस्टम का. 0. दैट मींस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना रहेगा. 0 और constant. जीरो और कांस्टेंट. बट यहाँ पर जीरो है. बराबर है. अच्छा यहाँ पर एक शॉर्टकट काम कर जाएगा. ऑलवेज रिमेंबर m left x left is m right x right. ये आगे आएगा. m left x left is m right x right. जैसे हम लोग लिखते हैं ना m बुलेट. अरे रिकॉइल का सम था ना यार. बड़ा m बड़ा v इज इक्वल टू छोटा m छोटा v. हेलो हेलो. Yes, sir. तो वैसे ही अगर इंटीग्रेशन कर लेंगे उसका तो x में आ जाएगा ना वो. तो जो चीज मास लेफ्ट x लेफ्ट m राइट x राइट. या दूसरा चीज ऐसे भी लिख सकते हैं ना m लेफ्ट v लेफ्ट इज इक्वल टू m राइट v राइट. हेलो यस और नो. ये चीज है और ये दोनों एब्सोल्यूट है. ये x और v और ये सब एब्सोल्यूट वेलोसिटीज एंड एब्सोल्यूट. रिलेटिव नहीं लेना है यहाँ पर. ओके तो ये क्या है भाई. सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव ओनली ना इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सेंटर ऑफ मास मूव थोड़ी होगा बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स जीरो है ना. ये तो इजी क्वेश्चन. मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा था ताकि आपको समझ में आए. अच्छा एक क्वेश्चन है. मेरी बात सुनो. एक क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल. दो इंसान टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं ऑन अ स्मूथ सर्फेस. वेयर विल दे मीट. इधर ध्यान देना. स्मूथ सरफेस है मतलब ये खाली फोर्स है ना टेंशन वाला. हेलो तो इंटरनल फोर्स है. दैट मीन सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा. Yes, sir. तो दैट मीन्स दे विल मीट वेयर एट द
Center of mass. सेंटर ऑफ मास। ये याद रखना, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो पूछ चुका है पहले। 32 इयर्स जो बुक मैंने भेजा है ना आप लोग को, वो उसमें है शायद। ओके, तो प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, ये चैप्टर में कॉन्सेप्ट का बहुत काम है, ये और रोटेशनल मोशन चैप्टर में, बाकी खत्म। So this is there. What to do? Hmm. 37th वाला करता है। The motor fires a shell of mass बड़ा m which explodes into two pieces m/5 and 4n/5 at the top of the trajectory. The smaller mass falls very close to the motor. In the same time, the bigger piece lands at a distance d from the motor. The shell would have been fallen at a distance r from the motor if there was not explosion. The value of d is how much? Okay. तो क्या हो रहा है? There is a, ध्यान दो इधर, ये मोटर है, ये this is the tank or whatever we call it, tank है, and it is firing a ball. So यहाँ पर capital M था, it explodes into two pieces. It was going here initially. Okay, it was going with the speed v. फिर क्या हुआ, ये दो टुकड़ों में बढ़ गया, this was initial. फाइनली क्या हुआ, m/5 और 4m/5 में उड़ गया। अच्छा, m/5 कहाँ गिर रहा है, कोई बता सकता है m/5 कहाँ गिर रहा है? m/5 falls here. हेलो Yes, हेलो, sir. यस और नो? ये तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0 पकड़ लेते हैं। 4m/5 कहाँ गिर रहा है, 4m/5? हेलो, कहाँ गिर रहा है यार, बोलो ना। d,0 पर, Distance. d,0 पर, सही है। हेलो, Yes, sir. अच्छा कह रहा है कि अगर ये नहीं एक्सप्लोड नहीं होता तो ये कितने डिस्टेंस पर गिरता? अगर ये R. एक्सप्लोड ना होता तो ये ऐसे गिर जाता, सपोज ये ऐसे जाके इधर गिर जाता, बराबर है क्या? हेलो, ये m, Yes, sir. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? r,0, सही है। हेलो, दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, एकदम आसान है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसको पकड़ो x1 और इसको पकड़ो x2। शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने आपको दिया है क्या? हेलो, याद है ना? अच्छा, ये इनडायरेक्टली ये है क्या, Center सेंटर of ऑफ मास mass. का, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है। ये m1 है, ये m2 है, मैंने आपको सिखाया है भाई, क्या बात कर रहे हो? याद है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन देम बी r, याद है? ये r1 ले लो, r1 क्या रहेगा, शॉर्टकट याद है किसी को? r1 विल बी M2 अदर R मास upon M1 plus m2, M2. हाँ लगाओ। तो r1 x1, x1 की जगह क्या रहेगा, क्वेश्चन देखो जरा, x1 की जगह क्या रहेगा, r1 की जगह क्या रहेगा, r1 X1. x1 इज r ना, बट हेलो, r है ना ये भाई, है कि नहीं? m2 इज 4m/5 इंटू r क्या रहेगा, D. d रहेगा ना, अपॉन m1 प्लस m2 सेम ओनली ना, ये तोड़ गया। तो क्या चाहिए आपको, d का वैल्यू चाहिए, तो d विल बिकम 5/4r, ये आंसर है। डिड यू गेट इट? हेलो यार, ये कॉन्सेप्ट था ना, ये सब टेंशन नहीं है, और ये उसका शॉर्टकट है। ओके, हेलो, यस और नो? Yes, sir. क्लियर है? हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है ये तो। 41 पर आता है।
Listen to me. A cracker is thrown in air with a velocity of 10 meter per second and an angle of 45 degree with respect to vertical. When it is at a height of half meter from the ground, it explodes into number of pieces and follows different parabolic path. What is the velocity of center of mass when it is at a height of 1 meter from the ground? ठीक है, एकदम इजी है. देखो वो टूटा कि नहीं टूटा, मैं क्या कह सकता हूँ कि एक फायर क्रैकर है, उसको हमने फायर किया at an angle of 45 degrees with respect to horizontal. Can I say it will follow a parabolic path? अच्छा, यहां पर आके कह रहा है वो एक्सप्लोड हो गया. हेलो, यस और नो? Yes, sir. बट एक्सप्लोजन हुआ कि नहीं हुआ? एक्सप्लोजन हुआ किसके कारण? इंटरनल फोर्स के कारण कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण? Internal. Internal force. That means center of mass will remain at that own position only. हेलो हेलो, सेंटर ऑफ मास का स्पीड तो वही रहेगा ना जो था पहले. हेलो, that means center of mass will follow this trajectory only. Yes or no? Yes, sir. Till any one of the particle reaches the ground. तो हम लोग पकड़ रहे भाई वो अब तक कोई हवा में ही है, सब लोग जमीन पे कोई पहुंचा नहीं है, क्योंकि जमीन पे पहले वाला पहुंच जाएगा तो सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब हो जाएगा. यस और नो? हेलो, कुछ समझ में आ Yes, रहा है क्या sir. बोलना चाह रहा हूं मैं? है अंडरस्टैंडिंग? हाँ, ठीक है. आपको पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. एकदम इजी सम है. वेलोसिटी एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर. हाँ, तो आधे मीटर पे वो टूट गया. 1 मीटर पे पहुंचा तो कह रहा है उसका स्पीड कितना है, और इनिशियल स्पीड 10 था. अब जनरल फॉर्मूला लगाओ ना यार. कैन आई से ये 10 cos थीटा का 10 cos थीटा तो सेम ही रहेगा. हेलो, कैन आई से 1 मीटर पे ये 10/√2 तो सेम ही रहने वाला है ना. ये क्या हो जाएगा? हेलो, क्या हो जाएगा? b square will be u square minus 2gh ना. u square is 10/√2 का स्क्वायर will become 100/2 minus 2g. h is 1. बराबर है क्या? 50 minus 20 that is 30. हेलो हेलो, ये सही लिख रहा हूं मैं? तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट दैट इंस्टेंट कितना रहेगा? कितना रहेगा भाई? कितना रहेगा? ओके, जैसे एक काम करता है ना, छोड़ो ये सब सिंपल वेलोसिटी पूछा है ना आपको, सब मैं करता ही नहीं हूँ. इट इज बेटर टू अप्लाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला. ऐसे नेट वेलोसिटी रहेगा ना इसका कुछ. हेलो, कैन आई से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ m v स्क्वायर. v कितना है इनिशियली? 10 स्क्वायर. वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या रहेगा? mgh. हेलो, Yes, sir. फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv फाइनल स्क्वायर. यही मानते हैं ना आप? m और m उड़ा तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो ये हो जाएगा 100 माइनस 2g दैट इज 20 इज इक्वल टू vf स्क्वायर. तो √80 आएगा. √80 कितना होता है? 4√5 ना. 4√5. या तो आप वो कन्वेंशनल जो मेथड है प्रोजेक्टाइल मोशन का उससे भी कर सकते हो. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? हेलो, Yes, sir. u cos थीटा u sin थीटा लगा के फिर रूट ऑफ v स्क्वायर u स्क्वायर आप लगा के आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा. नो बिग डील, इट इज द सेम थिंग. विल कम टू क्वेश्चन नंबर 42. ध्यान देना है. An open railroad car of mass m is moving with an initial velocity v0 on a straight horizontal frictionless track. If suddenly it starts raining at time 0, the raindrops fall with a velocity v
and add a mass of mu kg per second. ये क्या है? dm by dt है ना. Determine the velocity after t seconds. Okay. So raindrop fall with a vertical velocity v. Okay. Fine. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी क्या हो रहा है? एक रेल रोड कार है, so time zero is going with the velocity v naught. ये बारिश ऐसे गिर रहा है, कितने स्पीड से गिर रहा है बेटा? एंड इसका dm by dt म्यू है, वो ऐड करने वाला है. डिटरमाइन द वेलोसिटी v आफ्टर टाइम t. तो दिस इज हैपनिंग एट टाइम जीरो. आफ्टर टाइम t पानी भर गया ना, उसका स्पीड v हो जाएगा. ये v का वैल्यू ढूंढना. डिड यू गेट इट? Yes, sir. अब मुझे आप एक बात बताओ, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बारिश, रेन, with respect to the rail track? हेलो, Under root v square plus v naught square. relative speed in the horizontal direction. हम लोग horizontal direction, vertical direction में हम लोग नहीं कर सकते हैं, because उधर gravity भी लग रहा है ना बेटा. हेलो, can I say in this direction the relative speed will be minus v naught? Hello, yes or no? Yes, sir. In this direction the relative speed will be minus v naught. ये सही है? Okay. Thrust force का क्या फॉर्मूला है बेटा? Vr minus dm by dt plus minus dm by dt. Hello, are you all there or not? भाई करेक्ट है क्या? Yes, sir. थ्रस्ट फोर्स यहाँ पे क्या लगा? Vr is minus v naught, dm by dt is mu. आप लोग हो ना मेरे साथ? yes or no? Yes, sir. अब हम लोग और आगे बात करते हैं. बेटा थ्रस्ट फोर्स का दूसरा फॉर्मूला क्या है? m into a, because थ्रस्ट फोर्स तो हॉरिजॉन्टल में ही लगेगा ना. दिस इज ओनली इन विच डायरेक्शन आई एम स्पीकिंग अबाउट. Horizontal. वर्टिकल में बात नहीं करना है. वर्टिकल में कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है उसको. वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल में चेंज हो रहा है, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फोर्स की बात करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल रिलेटिव मोशन की बात करेंगे. थ्रस्ट फोर्स इज माइनस वी नॉट म्यू एम ए, बट ए को लिख सकते हो dv by dt, and this is mass at any instant. This is mass at any instant. This is the instantaneous mass. Can anyone tell me what is the instantaneous mass actually? क्या भाई? Initial Capital M mass plus mu t. plus mu t dv by dt. भाई समझ में आ रहा है आप लोग को? हेलो, यस और नो? Yes, sir. जी सही है. अच्छा, अब क्या मैं बोल सकता हूं? मेरी बात सुनो हाँ बेटा. मैं यहां पर एक सब्जेक्ट है कि एट एवरी इंस्टेंट इज द स्पीड कांस्टेंट और चेंजिंग. ये जो v नॉट है ये एट एवरी इंस्टेंट चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है? It's changing. चेंजिंग. इधर देखना, मेरी बात सुनना, अच्छा वाला क्वेश्चन है. तो कहना इसे ये भी चेंज होगा? अरे भाई ये भी तो चेंज होगा. Yes, sir. तो इसका मतलब v नॉट नहीं लिखना चाहिए क्वेश्चन में. कैन आई राइट एट एनी इंस्टेंट v ओनली? हेलो, समझा क्या मेरी बात?
हेलो 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 हेलो, यस और नो? Yes, sir. वी आर इज एवरी मोमेंट चेंजिंग, तो वी नॉट लिख के कोई काम चलने वाला नहीं है, बिकॉज जब इंटीग्रेशन होगा तो वी नॉट नहीं है, वो वी होना मांगता है। हेलो, आई ऑल देयर? हेलो। Yes, sir. हाँ भाई, ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ये वी लिखना है बिकॉज इट इज वेरिएबल। एक्चुअली वी नॉट ही होता एट स्टार्ट, बट दूसरे इंस्टेंट पर तो ये बारिश भी ऐसे है ना, ये बारिश का स्पीड एट यहाँ पर अभी इस डायरेक्शन में वी हो जाएगा ना, ये तो इसका रिलेटिव स्पीड भी हो जाएगा। ये चीज है, ये ध्यान रखना बेटा। ये क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन वी एंड माइनस साइन इंटीग्रेशन वी नॉट टू वी, और दूसरा वाला क्या है, ये कितना हो गया, ये डीवी बाई वी हो गया, ये बना डी टी अपॉन म्यू एम प्लस म्यू टी। हेलो Yes, sir. भाई, सही तो है। और यहाँ पर भी हम लोग इंटीग्रेट मार देंगे फ्रॉम 0 टू टी। चलो बोलो, ये क्या हो जाएगा? चलो अभी इंटीग्रेशन हो गया, अब मेरा काम खत्म हो गया, अब बोलो जल्दी, क्या हो जाएगा यार? ln ऑफ ln of v. v बाई वी नॉट, ये वी नॉट स्टार्ट में वी नॉट था, तो अपर लिमिट माइनस लोअर है, माइनस माइनस साइन उल्टा कर देगा ना इसको। हेलो, Yes, sir. और ये देखो, ये भी क्या हो जाएगा, म्यू बाहर, ln ऑफ क्या? M plus mu t. 0 टू 2 है ना, अपॉन एम आएगा ना। हेलो, यस और नो? अपॉन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दैट इज म्यू ना। हेलो Yes, sir. भाई, यार मैथमेटिक्स आना चाहिए ना बेसिक तो। आई ऑल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? सही है क्या, क्या मैं सही लिख रहा हूँ? डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन निकालना पड़ेगा तो म्यू तो आएगा है ना, यस और नो? Yes, sir. It's right only. ये उड़ गया, ln भी उड़ गया मतलब आई हैव टेकन एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, v नॉट बाई v इज इक्वल टू m प्लस म्यू t अपॉन m। क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो v क्या रहेगा, m v नॉट अपॉन प्लस। आर यू गेटिंग इट? हेलो, यस और नो? So actually, we don't need to apply thrust force for this question. वी कैन अप्लाई डायरेक्ट v का फॉर्मूला ना, v का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो v It फाइनल is का फॉर्मूला क्या था? conservation of momentum. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लगाएंगे बेटा, v चेंज हो रहा है एट एवरी इंस्टेंट। No, the initial momentum is capital M v naught, and final momentum is m plus mu t into v. बराबर है, करेक्ट है, m प्लस मोमेंटम इनटू v बराबर है, मैच कर जाएगा। ओके, करेक्ट है, ये भी सही है। कैन आई डू वन थिंग, कैन आई अप्लाई द v का जनरल फॉर्मूला आल्सो? v का फाइनल फॉर्मूला क्या था वो रॉकेट वाले सम में? U minus gt plus vr ln m naught by m. vr ln नहीं, उसमें भी इंटीग्रेशन, बिकॉज vr इज नॉट कांस्टेंट ओवर देयर। यहाँ पर आपका मेथड चल जाएगा गौतम, यस, इट विल वर्क। गेटिंग इट? गौतम हैज टोल्ड इनिशियल मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम, आप अप्लाई कर सकते हो एंड यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर, वही आ जाएगा, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम कितना था बेटा? m v m v naught. naught, m v naught in that direction, horizontal direction, okay, and final momentum कितना हो गया, m plus mu t into v dash। हाँ, तो v dash मिल गया, m v naught upon m plus mu t, ये भी सही है, करेक्ट है, करेक्ट है, बहुत सही, बहुत अच्छा, ओके, करेक्ट है बेटा, गुड, गेटिंग इट ना? हेलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो we'll do the 44th question। लुको भैया, I'll do till 50 at least, दो सम और करते हैं,
again finished. 50. Okay, fine. The figure shows a metallic plate of uniform thickness and density. The value of L in terms of the value of I in terms of L, so that center of mass lies at the interface of the triangular and the rectangular portion. तो ये छोटा L का वैल्यू चाहिए हमको. सेंटर ऑफ मास बीचों बीच लाई करें, एकदम इजी है. ट्राइंगुलर सरफेस में हमको मालूम है सेंटर ऑफ मास जो लाई करता है, ये सेंटर ऑफ मास रहेगा इसका. It lies at a distance of h/3. Hello, do you know it? तो इस केस में l/3 है ना. Yes or no? Yes, तो sir. आना चाहिए ना भाई आपको. एंड अगर रेक्टेंगुलर सरफेस रहेगा, it is obviously in the middle only, that is l/2. ये l/2 है सेंटर ऑफ मास. अब तो हमको तो मालूम है कि ये एक सेंटर ऑफ मास रहेगा, ये दूसरा सेंटर ऑफ मास रहेगा. ओके, जिसका एरिया A1, इसका एरिया A2, एंड ये है l/3 और ये है l/2 और ये कॉम है सिस्टम का. हेलो, आर यू गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. एकदम आसान है. कैन आई से सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग, ओके, एट सेंटर ऑफ मास m1 y1 is equal to m2 y2, जैसे m1 x1 is m2 x2 करते थे ना. कैन आई से a1 y1 is equal to a2 y2. a1 क्या रहेगा भाई, क्या रहेगा? Half BL. हाफ बेस हाइट. y1 कितना है उसका? l/3 है. a2 कितना रहेगा? लेंथ इनटू ब्रेथ. एंड y2 कितना इसका? l/2 है. ये स्मॉल l है, करेंगे ना. स्मॉल l यहां से कितना मिलेगा देखो जरा. स्मॉल l, ये b और b तो वैसे ही उड़ गया, ये 2 और 2 तो उड़ गया. हाँ, तो ये स्मॉल l² √3 आएगा. ये l/√3 करेंगे ना नॉट. ये l² हो गया ना बेटा, देखो ना, ये और ये स्क्वायर हो गया ना, ये √3 बन गया. करेंगे ना नॉट? Yes, sir. ठीक है. Last question I am doing, that is question number 48. A body of mass m is dropped from a height h. Simultaneously, another body of mass 2m is thrown up vertically with a velocity v, that they collide at a height of h/2. If the collision is perfectly inelastic, the velocity of the combined mass at the time of collision will be how much? Okay. क्या कह रहे हैं अभी यहाँ पे, ध्यान देना सब लोग भी. A body of mass m is dropped from a height h. Simultaneously, another mass 2m, इसका speed 0 है, is thrown vertically out with a speed v. ये initial time 0 की बात है. After time t, they collide at h/2. कोलिजन हो रहा है और दोनों इनइलास्टिक कोलिजन है, मतलब दोनों एक दूसरे से चिपक जा रहे हैं. बराबर है क्या? तो ये मास कितना हो जाएगा? 3m हो जाएगा ना. हेलो, Yes, sir. and they are asking what is the velocity of the combined mass. Velocity of the combination, ये velocity common हमको मालूम. ठीक है, तो सिंपल है. फाइन, चलो. अब मुझे वहां पे एक बात बताओ कि एट हाइट h/2 इस वाले का स्पीड कितना रहेगा? हेलो यार, बोल सकते हो ना? काइनेमैटिक्स तो आता है ना आपको. इसका स्पीड कितना रहेगा? जल्दी बोलो यार.
कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस जी एच. ओके, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, सही है क्या? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज वी स्क्वायर, ये वी डैश पकड़ लेते हैं इसको, माइनस 2gh/2. आर यू देयर विथ मी? हेलो, ये मिला कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, कोई बता सकता है इसका स्पीड कितना रहेगा? ये भी h/2 गिरा ना? हेलो, गिरा कि नहीं? ये हो जाएगा वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस ये मिल गया हमको इसका स्पीड. इसका स्पीड कितना रहेगा जल्दी बोलो? Root gh. 2gh/2, तो gh मिलेगा, ये इसका वेलोसिटी रहेगा, बराबर. ठीक है, अब आई नो दैट just before collision this guy is with the speed of u square minus gh, and this guy has a speed of gh, बराबर क्या? ये v स्क्वायर है, ये भी इसका v स्क्वायर है, बराबर है क्या? Yes, sir. Okay, just after collision 3m और उसका v डैश का कोई मालूम नहीं है, बराबर है क्या? तो कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? कैन एनीवन टेल मी द फॉर्मूला फॉर कॉमन वेलोसिटी? भाई बोलो, कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला किसी को पता है क्या? v कॉमन का फॉर्मूला क्या है यार? m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m2. हाँ, तो m1 is 2m, u1 इसका रहेगा रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस gh माइनस m2 u2 रहेगा रूट gh अपॉन 3m. आर यू देयर विथ मी? भाई आर यू देयर विथ मी, यस Yes, और sir. नो? अब यहां पर प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है मेरे साथ में? आंसर देखो, आंसर देखो जरा, आंसर h के टर्म्स में ना? हेलो, आंसर h के टर्म्स में है क्या नहीं? हेलो, आई ऑल देयर और नॉट? ओके, So, but they have asked velocity at the time of its collision with the ground. हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ही तो रहेगा वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. यस, वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास पूछा है ना एट द टाइम ऑफ कोलिजन. सी, द आंसर इज इन टर्म्स ऑफ यू और नॉट. ये यू वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, वरना तो आंसर आ जाता ना मेरे पास. हेलो, व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? आर यू So, but गेटिंग this इट? is vcom at h/2 height. या तो दे आर कोलाइडिंग एट दैट टाइम ओनली ना. So, but they are पढ़ो, asking पढ़ो collision क्वेश्चन. with the ground. Okay, velocity of the collision with the ground. Yes, okay. Velocity of the time of collision with respect to ground. अब क्या होगा? Okay, तो ये v collision है at with respect to this thing. हाँ, at this moment है. अब they are asking velocity of time of collision with respect to ground. मतलब ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा. They are asking you this speed. हाँ, okay. Now, तो इसमें और एडिशन होने वाला है अभी. इसमें क्या एडिशन होगा बेटा अभी? Can I say it is going down at the height of h/2? हेलो, तो v डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v डैश स्क्वायर विल बिकम, क्या हो जाएगा? u डैश स्क्वायर, हेलो,
plus 2gh. plus 2gh/2. Yes or no? Yes, sir. यहां पर भी u स्क्वायर ये है, ये वाला u है, ओके। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। काम करते हैं, दूसरे मेथड से ट्राई करेंगे, बिकॉज ये तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। I'll rub this again, do it by another method। देखते हैं सेकेंड मेथड के हिसाब से जाएगी, विल गो बाय टाइम मेथड। ये क्या कहना चाह रहा है, मास 2m is thrown up with a speed v, mass m, u is 0, height is h, ओके। एक काम करेंगे हम लोग, टाइम मेथड से करते हैं। सेकेंडली क्या हुआ कि ये हाइट h/2 पर आ गया, तो स्पीड v डैश ये आ गया, v डबल डैश, ओके। ये भी हाइट h/2 ही गिरा, फाइन। कैन एनीवन टेल मी फॉर मास m, can I apply s is ut plus half t square, h/2, u is 0, half gt square। टाइम क्या रहेगा, लो मिला क्या, हेलो, yes or no? Yes, sir. Can I say in this time only the same mass will go up, mass 2m? Yes, sir. तो वो बहुत, तो यहाँ पर कैन आई से इसके लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कैन आई अप्लाई फिर से s is ut plus half t square, s is h/2, u is plus vt minus half gt square, पर t यही है ना, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे h/2, t की जगह लिख सकते हैं रूट h/g माइनस हाफ g h/g, h/2 b रूट h/g माइनस h/2, ये h हो गया, ये क्या मिला, मिला क्या, हेलो, Yes, sir. ये स्पीड से फेंका गया है, ये बॉटम स्पीड से वो फेंका गया है। अगर वी आर डूइंग बाय टाइम इक्वेशंस, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई डूइंग? भाई पीछे मैंने डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन लगाया था ना, So उससे तो won't it be कॉम्प्लिकेट हो root gh? जी एच, हाँ रूट जी एच आ जाएगा, ठीक है, वो सब ठीक है, रूट जी एच आ गया। अब क्या करना है, अब हमको ये तो मिल गया, अब क्या पूछ रहा है आपको कि velocity of the combined mass at the time of collision with respect to ground। ओके, नाउ अब ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, टाइम भी मिल गया। अब आई नीड वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास कोलिजन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। काम करेंगे 1v1 वेलोसिटी ऑफ द, हाँ ठीक है, चलो एक काम करते हैं अभी, अब वी कॉम फाइंड करते हैं हम लोग इस सिस्टम पर ही। इन दोनों के बीच में सेंटर मास रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, हेलो,
मतलब इन दोनों को मैं वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दिया और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल दो। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है? m1v1 plus m2v2 upon m1 plus m2. Be with me here. m1 is 2m. वेलोसिटी कितना है इसका? रूट gh है. m2v2 0 है अपॉन 3m. आर यू देयर विथ मी? हेलो, Yes, sir. ये मिला v कॉम. गेटिंग इट और नॉट? हेलो, यस और नो? Yes, sir. अब कोई बता सकता है मुझे कि v कॉम इनिशियली सेंटर ऑफ मास कौन सी हाइट पर है? इनिशियली एट टाइम 0 पर सेंटर ऑफ मास कौन सी H हाइट पर by है? 3. सेंटर ऑफ मास इधर किधर रहेगा ना? हेलो, रहेगा कि नहीं रहेगा? फ्रॉम द ग्राउंड कितना रहेगा डिस्टेंस? कर सकते हो ना सब लोग? H by 3. कैसे आया आपको? सेकंड वाला मास इनटू हाइट अपॉन टोटल मास ना, दैट विल कम h/3. यस और नो? हेलो, एंड कैन आई से इट इज गोइंग अप with a speed of 2 root gh/3? हेलो, यस और नो? Yes, sir. आपको समझा मैं क्या करना चाह रहा हूं? ये अब आपको पूछ रहा है कि ये सेंटर ऑफ मास ऊपर जाके जब नीचे आएगा तो जमीन से कौन से स्पीड से टकराएगा? गेटिंग इट? Yes, हेलो, sir. दिस इज हाउ यू डू इट. अब क्या करना है? कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है बेटा? V square equals U square plus 2as. v square is equal to u square plus 2as. v dash square is equal to u square. u square ये मिला ना मुझे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4gh/9 प्लस 2a. a कितना है? a का वैल्यू कितना है? Minus G. नहीं, फिर नीचे भी आपने वही लिया है ना बेटा. हेलो, देखो नीचे आते समय स्पीड बढ़ेगा घटेगा? यस और नो? अप्लाई. हेलो, डिस्प्लेसमेंट भी माइनस ही है ना, तो प्लस ही लिखेंगे ना हम लोग. Okay. गेटिंग इट और नॉट? भाई डिस्प्लेसमेंट भी तो माइनस है ना नीचे, तो दोनों प्लस हो जाएगा ना फिर. ये 4gh/9 एंड इसको g रहने दो ना, ये हो जाएगा 2gh/3 which could also be written as 4gh/9 plus 6gh/9, तो 10gh/9 v dash square. तो दिख रहा है आंसर? हेलो, आंसर इज √10 gh/3. ये आंसर है. करेक्ट. Did you get it how to do? Yes, sir. ओके. तो देखो फिर से मैंने क्या किया, मैंने टाइम इक्वेशन लगाया, टाइम फाइंड किया और टाइम से मैंने v निकाला. ये निकालना इंपॉर्टेंट है. एक बार ये निकाल लिया, फिर आपने दोनों मासेस को सेंटर ऑफ मास में बदल दिया. एंड वंस यू रिप्लेस दिस इन सेंटर ऑफ मास, देन यू कैन अप्लाई द बेसिक फॉर्मूला एंड गेट द आंसर. ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया एंड आई हैव गॉट द रिजल्टेंट आंसर. ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम वील कंटिन्यू फ्रॉम 50 ऑनवर्ड्स. थैंक यू, टेक केयर, बाय. Bye, sir. Thank you. Thank you so much. Yes, sir.